place A, where A is called as the frequency factor या फिर RNS factor. A is activation energy, R is gas constant, D is temperature, and K is called as the rate constant. Okay, this equation if you use for two different temperature, at temperature T1, value of K is K1, at temperature T2, value of K is K2. So with this equation can be written as log to the base 10 K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. So this is first formula and this is second formula on which we are going to solve numericals now. So first write down these two formulae, everyone. ये दोनों formula लिख लो पहले, first and second. Write down this formula. And write down this formula. Okay, the numericals for 3 marks based on either first or based on either this formula or this formula, and that numerical is common in your board exam. Okay, हो गया लिख के फॉर्मूले दोनों भी. एक मिनट 4 बार करती हूँ. ठीक है, हाँ नोट्स का पीडीएफ भेज दूंगा मैं सर को, डोंट वरी. So first numerical now. Read this question carefully. When temperature of a reaction increase from 320 Kelvin to 360 Kelvin, the rate constant increases by factor 1.85 times. Calculate energy of activation. Okay, class, देख लो. When the temperature of reaction increase from 320 Kelvin to 360 Kelvin, the rate constant increases by 1.85 times. Calculate energy of activation. Okay, question देख लिया आप लोगों ने. When the temperature of a reaction increase from 320 Kelvin to 360 Kelvin, the rate constant increase by 1.85 times. Calculate energy of activation. Okay. तो क्लास याद रखो हमेशा K1 is less than K2 and T1 is less than T2 mostly. मतलब अपने लिए easy पड़ता है न्यूमेरिकल सॉल्व करके. तो T1 is lower temperature and T2 is higher temperature. And T1 में at T1 जो K होता है K1 होता है, and at T2 जो K होता है K2 होता है. ठीक है, तो always take T1 as a lower temperature, T2 as a higher temperature. So at T1 K is K1, at T2 K is K2. Okay, temperature increase from 320 Kelvin to 360 Kelvin. तो temperature T1 कितना है? 320 Kelvin to 360 Kelvin. तो T2 कितना है? 360 Kelvin. The rate constant increase by 1.85 times. Rate constant increase by 1.85 times. मतलब क्या? K2 is 1.85 times of K1. चेक करो बार बार ये. Rate constant increase by 1.85 times. तो जो नया rate constant है वो पुराने वाले से 1.85 times ज़्यादा है. तो K2 is 1.8 times of K1. Or you can also write K2 upon K1 is equal to 1.85. Calculate energy of activation. So you have to find EA. So if you remember formula, log to the base 10 K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2. Okay, R का कितना होता है? We take always R 8.3
314 joule per Kelvin per mole. So that if I take R in joule, I get energy in joule. R के लिए होता है 8.74 joule per Kelvin per mole. So log to the base 10. K2 upon K1 हमारे पास 1.85 है. ये फाइंड करना है 2.303. R का वैल्यू है 8.314. 1 upon 320 minus 1 upon 360. Okay, so देखते हैं log 1.85 log 1.85 का वैल्यू होता है 0.2671. टू पॉइंट 303 into 8.314. ये 360 minus 320 40 होगा. 360 minus 300 divided by 320 into 360. So EA is equal to 0.2671 into 2.303 into 8.314 into 320 into 360 divided by 40. ठीक है, करके देखते हैं. 0.2671 into 2.303 into 8.314 into 320 into 360 divided by 40. तो आंसर आता है 14728. 1.472 into 10 raised to 5. नहीं, 10 raised to 4. J क्या होता है 1.472 into 10 raised to 4 जूल. हाँ सॉरी, आंसर जूल में आता है. गुड. 1.472 into 10 raised to 4 जूल. अगर उसको किलो जूल में करना है तो 1.472 into 10 raised to 4 joule will be 1.472 into 10 raised to 4 into 10 raised to minus 3. That will be 14.72 joule. अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो किलो जूल में, सॉरी. एक बार वापस कैलकुलेशन चेक करो सब लोग, मैं भी करता हूँ. 0.2671 into 2.303 into 8.314 into 320 into good 360 divided by 40 बराबर है 1.472 into 10 raised to 4, मतलब 1.472 raised to 4 जूल या फिर 14.72 किलो जूल. हो गया. ओके, आई होप ये सबका कंप्लीट हो गया है. तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर 3 मार्क्स. तो कैलकुलेट करते पेशेंस रखना है. ये क्वेश्चन देखो. A first order reaction has activation energy 22.8 kilojoule. A first order reaction has activation energy 22.8 kilojoule at 300 Kelvin. If rate constant of reaction is 1.42 into 10 raised to 2 per minute. If rate constant of reaction is 1.42 into 10 raised to 2 per minute, calculate frequency factor. Calculate frequency factor. A first order reaction has activation energy 22.8 kilojoule at 300 Kelvin. If the rate constant of reaction is 1.42 10 power 2 per minute,
कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है 22.8 किलो जूल, आर खाली होता है वो देंगे नहीं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल पर क्लास। अगर ये जूल में और ये किलो जूल में तो नहीं चलेगा, तो 22.8 इंटू 10⁻³ जूल। किलो जूल को अगर जूल में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 22.8 इंटू 10⁻³ जूल, ये भी जूल ये भी जूल। ओके, टेम्परेचर 300 केल्विन, टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर 300 केल्विन। टेम्परेचर 300 केल्विन है, ओके। बाद में के का वैल्यू है 1.42 इंटू 10⁻² पर मिनट। ओके, आपको फाइंड करना है ए, दैट इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है क्लास। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। अगेन 3 मार्क न्यूमेरिकल, so log to the base 10 k is equal to minus EA upon 2.303 R plus log to the base 10 A। तो log to the base 10 k कितना है, ओके हो जाएगा, ब्लर है ना वो ठीक हो जाएगा, या फिर आपका नेटवर्क थोड़ा वीक होगा इसलिए ब्लर दिखता रहेगा। अभी भी ब्लर ही आ रहा है क्योंकि, ठीक है मैं देखता हूँ, मैं आपको डिक्टेट करता हूँ, डोंट वरी। क्वेश्चन अपने क्वेश्चन डिक्टेट कर लो, क्वेश्चन कॉपी कर लो, क्वेश्चन कॉपी कर लो। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज, अब कॉपी कर लो, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज, हाँ अभी क्या करे बोलो, ब्लर है तो प्लीज जरा कोऑपरेट करो, सुनो। अब लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, मैं बता रहा हूँ इसलिए डिक्टेट कर रहा हूँ क्वेश्चन। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज एक्टिवेशन एनर्जी, a first order reaction has activation energy 22.8 kilojoule, 22.8 kilojoule at 300 Kelvin. If the rate constant of reaction is 1.42 into 10 raised to 2, if the rate constant of reaction is 1.42 into 10 raised to 2 per minute, calculate frequency factor, calculate frequency factor, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी दिया है आपको 22.8 किलो जूल, मतलब 22.8 इंटू 10⁻³ जूल। आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, के का वैल्यू 1.42 10⁻² पर मिनट दिया है, और ए आपको पूछा है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर को ए बोलते हैं। तो अपना इक्वेशन है log to the base 10 k is equal to minus E upon 2.303 R plus log to the base 10 A। अभी के का वैल्यू कितना है 1.42 इंटू 10⁻², ठीक है, इज इक्वल टू ई वैल्यू कितना है 22.8 इंटू 10 से मतलब 228 1 2 बराबर है, ये 3 0 शिफ्ट किया मैंने, अपॉन 2.303 इंटू 8.314, हाँ टी भी है, सॉरी यहाँ पे टी है, आई एम सॉरी, टी है, टी है, 2.30 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 प्लस log to the base 10 A, ठीक है। अभी इसका log फाइंड करते हैं, 142 raised to 10 raised to 2, 142 का log देखते हैं, log ऑफ, समझे आपको 1.4 to 10⁻² से 142 का log 2.152, ठीक है, ये इसका वैल्यू आ गया आपको। ओके, यहाँ पे माइनस साइन है, डोंट फॉरगेट, ओके, इज इक्वल टू, अभी ये पूरा
मैं जूम नहीं कर सकता। जूम एक मिनट कोशिश करता हूँ मैं। पर जूम का वो आउट ऑफ ये जाता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा बड़ा पेपर यूज करता हूँ, डोंट वरी। 2.14 2.152 ये इसका आ गया। अब सॉल्व करो। 22800 2800 divided by 2.303 divided by 8.314 divided by 300 3 point minus 3.969 एक बार आपको चेक करता हूँ। 22800 22800 divided by 2.303 into 8.314 into 300 कंप्लीट इज इक्वल टू 3 पॉइंट करेक्ट है। तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन प्लस लॉग टू द बेस 10 ए। ठीक है, अभी ये माइनस साइन यहाँ पे है तो कितना होगा? 2.152 प्लस 3.969 इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ए। तो 2.152 प्लस 3.969 इक्वल टू 6.121 6.121 इज इक्वल टू log to the base 10 a। तो हमें log a का वैल्यू मिला, हमें a चाहिए। प्लस अगर log to the base 10 a इज इक्वल टू, एक मिनट, तो log to the base 10 a इज इक्वल टू 6.131 है, तो a क्या होगा? a होगा एंटी लॉग ऑफ 6.131। एक मिनट देखता हूँ मैं। शिफ्ट log 6.131 that value is 1.352 into 10⁻⁶। ठीक है, आपको ब्लर दिख रहा है? एक मिनट मैं स्टूडेंट अभी भी ब्लर दिख रहा है, चेक करो। ब्लर दिख रहा है? अरे बाप रे, क्यों ब्लर दिख रहा है आज? रोज तो नहीं प्रॉब्लम होता। ठीक है, मैं क्या करूं अभी? बहुत ज्यादा ब्लर दिख रहा है, आपको दिख ही नहीं रहा? पूरा ब्लर है? ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक काम करता हूँ।
हाँ ठीक है, समझा मुझे ब्लर है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ तो करने की। चलो तो बंद, वाईफाई चालू है का? इथे वाईफाई का दिखत नाहीये। हो हो जस्ट चेक इट वंस। ठीक है। ओम पांडे जी, हेलो सर। हेलो। हाँ सर, हेलो। दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा बिल्कुल। हाँ हाँ सर, थोड़ा सा क्लियर हुआ है, थोड़ा क्लियर हुआ है। ठीक है, देखते हैं, अभी थोड़ा और हो जाएगा बाद में, देखते हैं, ये नेटवर्क का कोई इशू रहेगा। अब ये क्वेश्चन बताओ, दिख रहा है क्या? हाँ, द रेट कांस्टेंट ऑफ हाँ फर्स्ट ठीक है, मैं ऑर्डर मैं मैं रिएक्शन। मैं डिक्टेट करता हूँ, चलो बाकी सब लोग लिख लो। तो प्रीवियस क्वेश्चन हो गया लिख के आपका? सर एक मिनट दिखाओ ना प्रीवियस वाला सर। हाँ प्रीवियस, हाँ ठीक है। तो लॉग ए का वैल्यू 6.121 आएगा, लॉग ए का वैल्यू। तो लॉग ए अगर 6.131 है, सॉरी ये 121 है ना, सॉरी सॉरी फिर मिस्टेक है। अगर लॉग ए 6.121 है तो शिफ्ट लॉग की जगह लॉग 6.121 6.121 का वैल्यू होगा 1.321। तो ए का आंसर है 1.321 इंटू 10⁻⁶। हाँ यूनिट क्या होगा? आपने क्या फाइंड किया? एनर्जी ए फाइंड किया ना? हाँ मैं ए करंट बताता हूँ कैसे होता है। ओके, ए का यूनिट और के का यूनिट सेम होता है, तो जो यूनिट के का होगा वही यूनिट के का भी होगा। तो के का यूनिट हमारे पास पर मिनट है, तो ए का यूनिट भी पर मिनट ही आएगा, याद रखो, है इंपॉर्टेंट है। 1.321 10⁻⁶ यूनिट पर मिनट। आई होप ये हो गया आपका। हाँ सेम। तो ये हो गया ना? हाँ, मैं अज्यूम करता आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, पढ़ लो। द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, the rate constant of first order reaction at 25 degree Celsius is 0.24 per second. The rate constant of first order reaction at 25 degree Celsius is 0.24 per second. If activation energy of reaction is 88 kilojoule per mole, 88 kilojoule per mole, at what temperature will this reaction have rate constant? At what temperature this reaction will have rate constant? 4 into 10⁻⁻² per second. At what temperature will this reaction has rate constant 4 into 10⁻⁻² second per second? 4 into 10⁻⁻² per second. ठीक है, तो क्लास आपके पास वापस बोलता हूँ मैं, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.24 per second. If energy of activation of reaction is 88 kilojoule per mole, at what temperature would this reaction have rate constant 4 into 10⁻⁻² per second? At what temperature would this reaction, previous sum बाद में दिखा दो, पहले कंप्लीट करो। At what temperature would this reaction have rate constant 4 into 10⁻⁻² per second? अभी क्लास आपके पास ये k का लिया, राइट? रेट कांस्टेंट कितना है? 0.24, तो k is equal to 0.24 per second.
तो आपके पास ये भी के है, के कितना 4 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड। 4 इंटू कितना होता है 0.04 पर सेकेंड। अभी कौन K1 ओके कौन K1 और कौन K2? K1 कौन सा, K2 कौन सा, बोलिए कौन सा K1 और कौन सा K2? तो या क्लास याद रखो, जो ज्यादा होता है वो K2 होता है और जो कम होता है वो K1 होता है। इसमें 0.04 और 0.24 में बड़ा नंबर कौन सा है? आई थिंक 0.24 ना। तो ये अगर ये नंबर बड़ा है तो ये K2 होगा और ये नंबर छोटा है इसलिए वो K1 होगा। हाँ क्लास जब K 0.24 था राइट, तो टेम्परेचर कितना था 25 था, वो T2 होगा राइट। कितना 25 प्लस 273 केल्विन। देखो ये देखो ये K2 है तो उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T2 होगा। अगर ये K2 है तो उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T2 होगा और ये K1 है तो उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1। वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिया है 88 किलो जूल, मतलब 88 के आगे 3 जीरो लगेंगे जूल। आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बराबर आपको T1 पूछा है, करो सॉल्व करो। log to the base 10 K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2. तो log to the base 10 K2 का वैल्यू है 0.24, K1 का वैल्यू है 0.04। ये का वैल्यू है 88,000 2.303 8.314 right to 1 upon T1 minus 1 upon T2. फोर 6 तो ये log 6 हो जाएगा राइट। और log 6 का वैल्यू है log 6 का वैल्यू है 0.7781 राइट। ये log 6 का वैल्यू हो गया इज इक्वल टू 88,000 डिवाइडेड बाय 2.303 into 8.314 1 upon T1 minus 1 upon T2. ये नहीं हुआ, कंप्लीट कर लो। 7.781 हाँ
हेलो हाँ बोलो। सर, वो लास्ट वाला स्टेप आपने जो बताया लॉग वाला 0.024 अपॉन, सर वो बताओ ना एक बार। कौन सा वाला, ये वाला? हाँ ये वाला 0.24 हाँ अपॉन 0.04। सर, वो उसके बाजू में आपने लिखा है ना 88,000 अपॉन, क्या अब लिखा है अभी सर तक नीचे? 2.303 2 पॉइंट, 303 हाँ इंटू आर का कितना था 8.314 8.314। और ब्रैकेट में 1/7 माइनस 1/22। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है हाँ। हेलो सर। हाँ सर 1.692 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा ना? हाँ लिखा है ना। और विजिबल एक्चुअली। एक मिनट में कुछ करता हूँ।
यस, अभी थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है, क्लियर हो रहा है, अभी भी ब्लर ही दिख रहा है, पूरा ब्लर है, पूरा ब्लर है। कोई है यहाँ पे? कमलेश सर, हाँ सर। आपको ये दिख नहीं रहा क्या बिल्कुल भी? नहीं सर, रीडेबल नहीं है, थोड़ा सा नजदीक ले सकते हैं कैमरे को? कैमरा को या बुक नजदीक? या बुक के नीचे कुछ ऐसा थोड़ा। नहीं, कैमरा नजदीक लेंगे तो वो पूरा पेज नहीं आता उसमें, मतलब ऑलमोस्ट में जितना पेज आ रहा है उतना ही मतलब क्लास में कैमरा है। ओम पांडे क्या फालतूगिरी कर रहा है तो अभी ये क्या हुआ, स्क्रीन शेयरिंग क्या किया उसने? ये कुछ हो सर? नहीं, बुक के नीचे कुछ ऐसा थोड़ा सा वेट वगैरह कुछ लगाइए, थोड़ा बुक ऊपर आ जाए तो शायद कैमरे को थोड़ा नजदीक दिखे। ना, कैमरा तो एकदम ऑलमोस्ट टच है, मतलब पेज को मेरा मतलब हार्डली आधा फुट, मतलब आधा फुट भी नहीं है कैमरा, 10 ऑलमोस्ट कैमरे टच है। कैमरे के स्क्रीन को जरा टच करिए, जरा फोकस करे वो। ना, वो तो उसका वो इसमें है ही नहीं, मतलब वो कैमरा इसमें। हाँ, वो वैसा भी नहीं है ना। ठीक है, मैं देखता हूँ, एक मिनट रुको, मैं दूसरे फोन से ट्राई करता हूँ, रुको। ठीक है। नहीं, उसमें नहीं हुआ, मुझे बात नहीं निकल रही फोन में। हेलो हाँ सर, हेलो। बोलिए। हाँ, नहीं, अभी भी प्रॉब्लम है, मतलब ब्लर हाँ बहुत सर। बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है क्या? हाँ मतलब रीड नहीं कर सकते हैं ना, प्रॉब्लम वो है। अभी मतलब थोड़ा जैसे पास किया तो? हाँ, अभी थोड़ा ठीक है। ठीक है, हाँ, मैं तो हाथ में पकड़ के करता हूँ, फिर देख सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं बच्चों को हाँ दिखाता हूँ। अभी दिख रहा है सर थोड़ा बहुत? हाँ सर, अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आज क्या मालूम चलेगा नहीं सर, क्या प्रॉब्लम। ऐसा हाँ रहेगा तो भी चल जाएगा। हाँ हाँ। तो बच्चे लोग अब देख रहे हो, ये देख पा रहे हो तो कॉपी कर लो फटाफट। तो 283 पॉइंट, अब ऐसा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप खुद सॉल्व करोगे, वही बेटर रहेगा, स्क्रीन पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आपके फॉर्मूला, आपके वैल्यू है, आप सॉल्व करो। हाँ प्लीज डू दैट। ओके, अगर हो गया तो बता देना। तो 283.7, किसने तो आंसर बताया था, ये करेक्ट आंसर बताया था, 283.7 केल्विन। ओके, अगर हो गया रहा तो हम लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का, अगर हो गया रहेगा आपका तो। ओके, गुड, but this is last numerical. The activation energy for certain reaction is 334.4 kilojoule per mole. How many times is the larger the rate constant at 610 Kelvin, that rate constant at 600 Kelvin? The activation energy for reaction is 334.4 kilojoule per mole. How many times is the larger the rate constant? How many times is the larger the rate constant at 610 Kelvin, the rate constant at 600 Kelvin?
ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, अब देख लो। The activation energy for certain reaction is 334.4 kilojoule per mole. How many times is the larger the rate constant at 610 Kelvin than rate constant at 600 Kelvin? ठीक है, क्वेश्चन मैंने डिक्टेट किया, आपने सुना रहेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिया है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 334.4 kilojoule per mole. That will be 334,400 जूल पर मोल। हमने किलो जूल को जूल में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइंग बाय 1000। ओके, आपका T1 है 600 केल्विन, T2 का वैल्यू है 610 केल्विन, बता रहे, R का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इज वैल्यू ऑफ R। और आपको पूछा है K1 अपॉन K2 अपॉन K1 का वैल्यू क्या है, मतलब K2 K1 से कितना ज्यादा है, या फिर कैन से K2 इज इक्वल टू व्हाट टाइम्स ऑफ K1। K2 और K1 में रिलेशन क्या आपको पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स द रेट कांस्टेंट इज लार्जर, मतलब K2 K1 से कितना ज्यादा है, आपको ये K2 अपॉन K1 का वैल्यू फाइंड करना है इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में। ओके, सो फॉर्मूला log to the base 10 K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। EA का वैल्यू है 334,400 upon 2.303 into 8.314 into 1 upon 600 minus 1 upon 610। चलो सॉल्व करिए आप लोग। अब ये दिख नहीं रहा, दिख रहा, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको खुद को सॉल्व करना है। गुड, थ्री थ्री फोर फोर जीरो जीरो into 10 divided by 2.303 divided by 8.314 divided by 600 and divided by 610 upon 334। थ्री 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 थ्री, एक मिनट, 334,400 divided by 2.303 divided by 8.314 divided by 600 divided by 10। कैसे आ रहा है आपको 2000 आंसर 1/T1 माइनस 1/T2।
2 तो आपको आंसर आएगा log to the base 10 k2 upon k1। मुझे जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ 0.4771 मुझे वैल्यू आया। ये पूरा सॉल्व किया तो मुझे ये वैल्यू आया। इट्स एवरीथिंग I got 0.4771 log to the base 10 k2 upon k1 k2 upon k1। therefore k2 upon k1 will be equal to anti-log of 0.4771। तो shift log 0.4771 आंसर है 2.999 मतलब 3 होगा अप्रोक्सीमेटली। तो ऐसे लिखने का तो k2 is equal to 2.999 times of k1। प्लस बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। चेक करो किसी को ये आंसर मिला है क्या अप्रोक्सीमेटली। क्या आपको ये वैल्यू बता रहा है 0.4771 आगे तो करेक्ट है। ये करिए यहाँ, अगर ये करेक्ट है, अगर आपको ये वैल्यू आ गया तो आगे का एकदम करेक्ट है। तो k2 is almost 3 times of that of k1। so these were numericals based on Arrhenius equation and frequency factor। ओके तो ये सब हो गया। अगला अभी चैप्टर में एक छोटा सा पार्ट है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट, हाउ कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने आपको कल बताया था कि हाउ कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। समझो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी सी। तो अगर ए और बी सी रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट मिलता है ए बी प्लस सी। अगर हम उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करें, उसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। आपके वाई एक्सिस पे एनर्जी और एक्स एक्सिस में रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब डिफरेंट स्टेजेस ड्यूरिंग रिएक्शन। रिएक्शन कोऑर्डिनेट राइट। तो क्लास समझो हमारे पास रिएक्टेंट के पास अपना खुद का कुछ एनर्जी होता है। तो समझो दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट ए और बी सी का मिला के। तो क्लास जैसे रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं तो सिस्टम बिकम अनस्टेबल, सिस्टम अनस्टेबल होता है और एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग और सिस्टम को एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचना पड़ता है। इसको ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पे ए और बी में पार्शियल बॉन्ड बन चुका है एंड बी एंड सी का पार्शियल बॉन्ड टूट चुका है। तो जो बना है इट इज इंटरमीडिएट। और ये इंटरमीडिएट जिस स्टेज पे बनता है दैट स्टेज इज कॉल्ड एज द ट्रांजिशन स्टेज। और वहां तक जाने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं लोग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। बाद में क्या होता है, ए और बी का बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म होता है, बी एंड सी का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होता है। तो सिस्टम अगेन बिकम स्टेबल। हमें सिस्टम अगेन बिकम स्टेबल, एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। और समझो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया ए बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस बी सी था। ठीक है। तो आपको एनर्जी लगा इसको एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्लास ये रिएक्शन है नॉन कैटलाइज रिएक्शन। हमने इस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज नहीं किया है। तो क्लास अगर वापस रिएक्शन वही हम लोग करते हैं यूजिंग कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट यूज करके वापस यही रिएक्शन करते हैं तो क्लास क्या होता है, कैटलिस्ट इस रिएक्शन को कोई और मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। बोलता है यहाँ पे आपको समझो यहाँ पे एनर्जी लग रहा है से यहाँ पे एनर्जी लग रहा है 80 किलो जूल। तो कैटलिस्ट बोल रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी लग रहा है। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट पार्ट टू द रिएक्शन। तो रिएक्शन को ऐसे तरीके से करवाएगा जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कितना लगेगा समझो। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा से फॉर एग्जांपल 30 किलो जूल। तो जिस रिएक्शन को एक्टिवेशन के लिए 80 किलो जूल लग रहा था उस रिएक्शन को अभी कैटलिस्ट यूज किया तो 30 किलो जूल एनर्जी लग रहा है। तो क्लास समझो हमारे पास बीकर में 10 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से सिर्फ
1 करोड़ मॉलिक्यूल के पास 80 किलो जूल एनर्जी था। पर क्लास अगर एक्टिवेशन ओके, और समझो 7 करोड़ मॉलिक्यूल के पास 30 किलो जूल एनर्जी है। तो क्लास अगर एक्टिवेशन एनर्जी 80 किलो जूल होता तो सिर्फ 1 करोड़ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर पाते, क्योंकि उनके पास 80 किलो जूल एनर्जी है। पर अगर एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलो जूल हो गया तो 7 करोड़ मॉलिक्यूल जिनके पास 30 किलो जूल एनर्जी है, तो 7 करोड़ मॉलिक्यूल रिएक्ट होते पाते हैं, 7 करोड़, ठीक है। तो 30 किलो जूल है, उससे ज्यादा एनर्जी वाले 7 करोड़ मॉलिक्यूल आपके पास है, तो ये ज्यादा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर पाते हैं। तो क्या होता है, अगर कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है तो आपके पास ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास वो एक्टिवेशन एनर्जी होगा, तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ता है। दिस इज हाउ कैटलिस्ट वर्क, एंड कैटलिस्ट डिक्रीज द कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। बस ये सब चीजें आपको बहुत डिटेल में सीखनी है। चैप्टर का नाम है एचडीए, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स एंड आरेन्स में। सो अगर अभी तो अपने चैप्टर का पूरा थ्योरी खत्म हो गया है, आपको कोई क्वेश्चंस पूछना है तो प्लीज। बस एक चीज और होता है, आपको बताता हूँ मैं, एक चीज और है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। थोड़ा सा ध्यान दो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और क्लास यहाँ पे प्योर मैथमेटिक्स है और भी 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स नहीं है। तो क्लास अगर आपके पास एक रिएक्शन चल रहा है एट टेम्परेचर T1, तो रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट टेम्परेचर T1, तो क्लास अगेन दिस इज कंप्लीटली मैथमेटिक्स, ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाएगा मैथमेटिक्स के। प्लस एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का नाम है प्रोबेबिलिटी, आप सीखोगे बाद में। तो क्लास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं इसको। आप पूछ लो एमबीसी से क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो 12th में भी नहीं है। तो क्लास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो क्लास आपके पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, आपके ये जो कर्व में जो इस कर्व के अंदर जो एरिया है वो बता रहा है आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है टोटल। और क्लास और ये जो मैंने सिलेक्ट किया है एरिया, इतने मॉलिक्यूल के पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स होता है, इतना याद रखो कि ये पूरा कर्व क्या बताएगा मुझे, ये पूरा एरिया अंडर कर्व बताएगा मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, और जो मैंने डॉटेड लाइन किया है वो बताएगा मुझे क्या, कि इनमें से कितने मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, पूरे मॉलिक्यूल्स में से इतने मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन एनर्जी है, तब वो दिस इज टेम्परेचर T1। हाँ, प्लस अगर यही ग्राफ प्लॉट करते हो हाई टेम्परेचर T2, और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है T2, तो प्लस हाई टेम्परेचर T2 पे ये ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा एट हाई टेम्परेचर T2। दिस इज टेम्परेचर T2 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। तो आप देख सकते हो कि अभी आपके पास वो कर्व का एरिया बढ़ गया है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन एनर्जी है। तो आपको मुझे सिर्फ सिंपली इतना बताना है कि देखो ये सब मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स, आपका केमिस्ट्री से रिलेशन नहीं है। मुझे इतना बताना है एट टेम्परेचर T1 आपके जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल थे उतने एरिया के मॉलिक्यूल आपके पास थे एक्टिवेटेड, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी था। पर एट हाई टेम्परेचर T2 आपके पास ज्यादा एरिया अवेलेबल है, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल अवेलेबल है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको इतना समझना अगर एग्जाम में आया तो एक ग्राफ ड्रॉ करना है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इंक्रीजेस, बराबर है। तो क्लास सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर में से मुझे लगता है आपका जो नया टेक्स्ट बुक में उसमें से मैंने हर एक चीज कवर किया है। अगर आपको लगता है कुछ बाकी है तो प्लीज आप मुझे बता सकते हो, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं भी आपको, हमारे पास है और 5 मिनट, तो आप जो भी डाउट्स है पूछ लो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर टेक्स्ट बुक में ये जो कर दिया है ना हाँ, सर, वहाँ पर एक एकदम टॉप पर एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है। स्ट्रेट लाइन? हाँ एकदम टॉप पर, मतलब जो टॉप पे कर्व का वहाँ पर, जैसे T1 का जो एकदम अरे नहीं, वो स्ट्रेट लाइन नहीं खींची, वो स्ट्रेट लाइन नहीं खींची। वो क्या मतलब है, क्या ग्राफ पेपर दिखा रहे हो? उन्होंने बताया कि वो ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर। वो स्ट्रेट लाइन नहीं खींची, वो ग्राफ पेपर है। नहीं वो सर, स्क्वायर, जो वो सब स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, वो ना? नहीं सर, सर ये पेज जो नंबर बताओ, पेज नंबर बताओ टेक्स्ट बुक का। सर एक सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो T1 है ना सर, T1 ये T1, हाँ।
हाँ, इस कर्व के ना हाईएस्ट पॉइंट पर एक पॉइंट लिखा है और उधर लिखा है हाँ। हाँ, वहां पर लिखा हुआ है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऐसा कुछ तो लिखा हुआ है। अपने टेक्स्ट बुक में हाँ किधर है? पेज नंबर बताओ मुझे, मुझे तो नहीं दिख रहा। नया नया बुक की बात कर रहे हो तुम ना? नहीं सर, नया बुक नहीं है। हाँ तो नया बुक में देखो, ओल्ड बुक में क्यों देख रहे हो? टेक न्यू बुक। तुम्हारे पास पीडीएफ नहीं है नया बुक का? सर पीडीएफ है पर उसे पढ़ने को नहीं होता है पीडीएफ से। हाँ नहीं, पर न्यू बुक ही देखो, अभी हम लोग ये नहीं कर सकते। और अच्छा वो सर। ऊपर ऊपर जो टॉप पे बता रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। तो वो कौन बोल रहा है? पांडे, कुछ भी मत बोलो। क्या बोल रहे हो पांडे? हेलो, क्या बोला? हाँ T1 सर। क्या है? क्या बोला यहाँ सर पे? क्या उधर है? वो मैक्सिमम एनर्जी तक पहुंच जाता है ना। नहीं रे, वो अलग है। वो ये प्रोबेबली इसलिए बोला, ये इस कर्व का कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा ओके दोनों अलग अलग, कंप्लीटली अलग मिस्टेक मीनिंग्स है दोनों में। ओके। ठीक है? हाँ सर। हाँ तो ये देखो, मैं एक देखो बताऊँ, मैं आपको एक बार वापस बताता हूँ। तुम्हारे पास ये दिख रहा है पूरा ये कर्व बेल शेप का? हेलो, ये बेल शेप में जो पूरा कर्व है ना, ये देखो, ये ब्लू कलर पे मैंने ड्रॉ किया है T1। तो देखो जो प्रोबेबिलिटी में होता है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड स्क्यू डेटा है, राइट हैंड साइड स्क्यू डेटा। अभी इतने डिटेल में जाऊंगा तो आप पागल हो जाओगे। तो ये राइट हैंड स्क्यू डेटा है। तो उस ये पूरे कर्व के एरिया के अंदर इतना ही कर्व का एरिया है जिसमें आज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है आपके पास एट टेम्परेचर T1। ठीक है? और ये दूसरा जो आपको दिख रहा है, कौन सा? पिंक कलर का कर्व। इस पिंक कलर के पूरे एरिया में इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। तो टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ गया। इनको इतना सिंपल चीज बताना है बस। हाँ, कोई और? यस। हेलो सर, हाँ बोलिए। गिब्स एनर्जी क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट चैप्टर कल से शुरू करेंगे। नहीं नहीं सर, वो इसी का इफेक्ट्स ऑफ कैटलिस्ट ऑन। हाँ तो इसलिए मैंने नहीं बताया इसलिए ना तुम्हें, क्योंकि गिब्स एनर्जी एक 2 घंटे का टॉपिक है। हाँ तो गिब्स एनर्जी समझे बिना मैं तो तुम्हें कैटलिस्ट का इफेक्ट बताऊंगा तो मैं सब कुछ दिमाग में नहीं जाएगा ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब थर्मोडायनेमिक्स करेंगे कंप्लीट, आई कम बैक और आपको वो एक लाइन से एक्सप्लेन कर दूंगा आपका काइनेटिक्स का। तो गिब्स एनर्जी आपको पहले डिटेल में सीखना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक्स में, फिर हम लोग बात करेंगे इसको काइनेटिक्स में। एक लाइन वो है ना तुम्हारा गिब्स एनर्जी का, वहां पे। ओके, तो लेट इट कंप्लीट इन थर्मोडायनेमिक्स, देन विल कम बैक इन काइनेटिक्स। एक ही लाइन बाकी है वहां पे। यस, और कोई? हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ सर मैं ये बोल रहा था, जो अपने एक्टिवेशन एनर्जी तक अगर अपन ये कैटलाइज रिएक्शन करते हैं तो कैटलाइज आपने क्या बोला कि लाइक वो शॉर्टकट वाला एग्जांपल बताया था, हाँ। बट कैटलिस्ट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है क्या रिएक्शन को, मतलब कैटलिस्ट रिएक्टेंट? नहीं, कैटलिस्ट कुछ एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता। कैटलिस्ट क्या करता है? अभी हाँ रिएक्टेंट आपस में बॉन्ड बनाते हैं ना, हाँ तो कैटलिस्ट क्या करता है? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। मैं देखो, अगर तुम्हारे पास ए है, राइट? ओके ठीक है, और यहाँ पे टी एंड, ठीक है रुको मैं बताता हूँ। ए तुम्हारा ए एंड बी है, राइट? और तुम्हें क्या मिलने वाला है? सी ए बी मिलने ए वाला है, बी बराबर। अभी हम लोग कैटलिस्ट करेंगे तो हमारे पास ए होगा, राइट? और सी होगा और बी। बी होगा। कैटलिस्ट क्या करता है? पहले ए, ये इंटरमीडिएट बनाता है। अच्छा अगर ए एंड बी इंटरमीडिएट बनाते तो सीधा ऐसा इंटरमीडिएट बनता है, राइट? ए एंड बी, हाँ विच इज अ वेरी हाई एनर्जी। यस और कैटलिस्ट जो बनाएगा इंटरमीडिएट रिएक्ट, जिसका एनर्जी बहुत कम होगा। क्यों तो अगर सर? इंटरमीडिएट बनने के लिए कम एनर्जी लग रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम लगेगा, राइट? और इंटरमीडिएट बनने के लिए ज्यादा लग रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो इट डिपेंड्स। कैटलिस्ट क्या करता है? ऐसा इंटरमीडिएट बना है रिएक्टेंट के साथ। हम लोग जो बोल रहे हैं कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, वो रॉन्ग है। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन में पार्ट लेके इंटरमीडिएट बनाने के लिए हेल्प करता है, और बाद में क्या करता है? बोलो। वो बाद इंटरमीडिएट में क्या करता रिएक्शन है? को तोड़ देता है। फास्ट। और क्या हाँ कर देता है? बोलो। हेलो। वो इंटरमीडिएट को तोड़ देता है एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। और इसकी वजह से क्या होता है? कैटलिस्ट रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है। 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। बंदोड़, देखो तुम्हारा कैटलिस्ट है, दिख रहा है क्या? हाँ ए सर एंड बी झगड़ा कर रहे हैं। सॉरी, ए एंड बी झगड़ा कर रहे हैं।
हाँ ये बीच बाजू में कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट बीच में आ गया, राइट? हाँ हाँ दोनों को बॉक्सिंग का ये प्रोवाइड किया, ग्लोव्स प्रोवाइड किया, बोला जोर से झगड़ा करो, और अच्छा बाजू में सटक गया। ओके सर। देखिए, समझा? मत देखो, सर लेकिन फिर एक तरफ से इसने उनको एनर्जी प्रोवाइड किया ना, एनर्जी प्रोवाइड एक्स्ट्रा या एनर्जी बोल सकते हो आप। नहीं बोल सकते। एनर्जी कैटलिस्ट कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेगा? कैटलिस्ट देखो, पहले वो हाथ से मार रहे थे ना एक दूसरे को, हाँ अभी उनको ग्लोव्स प्रोवाइड किया, बोला अभी जोर से मारो, मतलब लाइक दैट। ठीक है, देखते हैं, वो भी देखते हैं, एनर्जी वाला पार्ट भी देखते हैं। वो भी तुम्हारा एग्जाम कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ हाँ जाएगा। हाँ, हाँ देखते हैं, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का. हाँ बोलो। In a reaction between A and B, the initial rate of reaction R0 was measured for different initial concentration of A and B as given below. What हाँ, is the order of reaction with respect to A and B? A mole per liter 0.20, फिर 0.20, उसके बाद 0.40 है, और B का मोल पर लीटर 0.30, 0.10 और 0.5. समझा समझा। वो न्यूमेरिकल में नेक्स्ट टाइम सॉल्व करता तुम्हारा। ठीक है. एक काम करो, वो न्यूमेरिकल ना इनको एमबीसी सर को भेज दो, फिर वो मुझे भेज देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वो न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं लेक्चर में। ठीक है. यहाँ पे हाँ. प्रॉपर सॉल्व करते हैं उसको। हम्म. और हेलो, हो गया सर, बाकी लोगों का डाउट नहीं है ओके किसी सर, को, ओके सर, थैंक यू। लीव कर सकते हैं।